It is defined as energy stored per unit volume. It is defined as energy stored per unit volume between the plates of energy stored per unit volume between the plates of capacitor. Energy stored per unit volume between the plates of capacitor. For a parallel plate capacitor, for a parallel plate capacitor which is charged such that charge on the plates is Q and its capacitance C, then energy stored is given by U is equals to Q square by 2C. U is equals to Q square by 2C. If A is plate area, D is distance between plates. Then volume in which electric field is present. Volume in which energy is stored. Also, E is electric field between plates. So energy density is half epsilon naught E square. इसमें देखो कोई डाउट है तो नेक्स्ट रेट ये आ गया समझ सबको. नेक्स्ट इज
Capacitance of isolated sphere. Capacitance of isolated sphere. Capacitance of isolated sphere. So you can write, consider an isolated sphere. Consider an isolated sphere having charge q and radius r. This sphere acts as positive plate of the capacitor. This sphere acts as positive plate of the capacitor, and negative plate is assumed to be having charge minus q and infinite radius. Negative plate is assumed to be having negative charge and infinite radius. सर रिपीट करना. Negative plate is assumed to be having charge minus q and infinite radius. Thus potential of negative plate will be zero. Thus potential of negative plate will be zero. And potential difference is same as the potential of this conducting sphere. This potential difference so CGS system में capacitance is equal to radius. So you can write इसके आगे. Thus in CGS system, capacitance of the capacitance of parallel plate spherical isolated sphere is numerically equal to the radius. सर स्फेरिकल के बाद क्या बोला आपने? Spherical isolated sphere या spherical isolated conducting sphere is equal to the radius. Next, capacitance of concentric spheres. Capacitance of concentric spheres. Capacitance of concentric spheres
विदाउट ब्रैकेट में लिख लो विद आउटर स्फीयर अर्थड, विद आउटर स्फीयर अर्थड। So concentric sphere है, outer sphere को अर्थ कर दिया। So इसका रेडियस R1, इसको हमने चार्ज दिया Q, आउटर को अर्थ किया। आउटर पे चार्ज कितना होगा? -Q या कुछ और? पोटेंशियल जीरो करते हैं। पोटेंशियल जीरो कर देंगे सर। ये हमने केस किया था इसलिए पूछ रहा हूँ। -Q होगा या -Q से डिफरेंट होगा? मैं अगर आउटर की पोटेंशियल को जीरो करूं, से आउटर पे मैं चार्ज ले लेता, अगर मान लो क्यों ही Q होगा। डैश, अगर मैं Q डैश ले लेता तो आउटर की पोटेंशियल क्या होती? इनर स्फीयर के कारण KQ/R2 और अपने चार्ज के कारण, KQ-R2। और ये जीरो, मतलब Q डैश इज इक्वल्स टू -Q ही आना था। यस तो कैपेसिटेंस सिस्टम बन गया, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं एंड दीज फॉर्म टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। बिकॉज आउटर को अर्थ कर दिया, आउटर को अर्थ कर दिया तो आउटर की पोटेंशियल तो हो गई जीरो। तो जो भी इनर की पोटेंशियल होगी वही पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा, यस सर। है ना? जो इनर की पोटेंशियल होगी वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इनर सरफेस की पोटेंशियल कितनी है पॉजिटिव प्लेट की? अपने चार्ज के कारण KQ/R और आउटर चार्ज के कारण, -Q/R। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? V नेगेटिव तो जीरो है, so capacitance comes out to be 4 pi epsilon naught R1 R2 upon R2 minus R1। यही बनेगी। इस रिजल्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं? यस सर। यस अगर आउटर स्फीयर का रेडियस इन्फिनिटी है तो कैपेसिटेंस कितनी होगी? अगर R2 इन्फिनिटी है तो 4 pi epsilon naught R1। आइसोलेटेड स्फीयर वाली आ गई, उसमें भी हमने नेगेटिव प्लेट इन्फिनिटी पे ली थी तो यही रिजल्ट आया था 4 pi epsilon naught R। यस सर। तो इसमें भी अगर हम इसे एज अ स्पेशल केस कर दें कि अगर आउटर स्फीयर का रेडियस इन्फिनिटी है तो फिर 4 pi epsilon naught R। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ दोनों प्लेट्स के बीच में ही स्टोर होगा या बाहर भी होगा? इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो बिटवीन द टू स्फीयर्स ही है या आउटसाइड द टू स्फीयर्स भी है? बिटवीन। आउटसाइड क्यों नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है आउटसाइड। बिकॉज R1 से कम डिस्टेंस लेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, R2 से ज्यादा लेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। So electric field exists only between R1 and R2. तो energy is stored only between the two spheres. Because अगर मैं बाहर लेता point, तो charge inside the Gaussian surface will be जीरो। zero. तो electric field zero आना था बाहर भी। और अगर मैं inside ले लेता तो इधर भी charge inside the Gaussian surface zero। यस तो ना तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बाहर है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों स्फीयर्स के बीच में है।
तो एनर्जी इज स्टोर्ड ओनली बिटवीन द टू स्फीयर्स. क्लियर है ये पॉइंट कि इसमें भी एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द टू स्फीयर्स है. डायग्राम बना लो, फिर लिखते हैं इसको. कैपेसिटेंस ऑफ concentric spheres, outer sphere earth. So you can write, consider two concentric spheres. Consider two concentric spheres of radius r1 and r2 as shown in figure. Of radius r1 and r2 as shown in figure. If the inner sphere is given charge plus q, if the inner sphere is given charge plus q, and outer sphere is earthed, then for potential of outer sphere to be 0, charge on it must be minus q. Potential for outer sphere to be 0, charge on it must be minus q. Potential difference between two spheres will be equal to potential of the positive sphere will be equal to potential of positive sphere. Capacitance will be 4 pi epsilon naught r1. सर हाँ जी. सर ये स्फीयर्स कंडक्टिंग है ना? हाँ, कंडक्टिंग. सर इसमें हमने आउटर स्फीयर का सिर्फ इसीलिए अर्थ किया है कि मतलब उसमें माइनस क्यू चार्ज आ जाए. हाँ, बिकॉज हम कर रहे हैं ना इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस कैपेसिटर प्लेट्स पे. अच्छा सर, अगर उसको अर्थ ना करके डायरेक्टली हम बोल देंगे मतलब माइनस क्यू चार्ज दे दिया. कर सकते हो. शायद प्रदीप ने ऐसे ही किया हुआ है. जो प्रदीप की बुक आती है उसने अर्थ नहीं किया, उसने वैसे ही ले लिया कि इस पे पॉजिटिव उस पे माइनस क्यू, ऐसे ही अर्थ करके शो नहीं किया. सिर्फ पोटेंशियल लेनी पड़ेगी क्या? अगर जैसे अर्थ नहीं किया. पर अगर आपने अर्थ नहीं किया, वैसे ही एज्यूम कर लिया कि इनर पे चार्ज प्लस क्यू, आउटर पे माइनस क्यू, तो आउटर की फिर भी पोटेंशियल तो zero जीरो ही आएगा. आएगी ना. यस. सेकेंड राइट इसके आगे कर लिया नोट ये. नहीं सर अभी नहीं. सर और स्क्रीन थोड़ी सी कर दो छोटी.
आप में से जो नॉन मेडिकल के हैं और जेई एडवांस प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन नंबर 101 to 110, पेज नंबर 105, 106, आई रोडोव 3.3 में 101 से 110, यहाँ इलेक्ट्रोडायनामिक्स का चैप्टर जो है उसके 101 से 110 क्वेश्चन करके देख सकते हो। तो सिर्फ जेई एडवांस जिन्होंने पढ़ना है, मेंस के लिए भी नहीं चाहिए, नीट के लिए भी नहीं चाहिए वैसे क्वेश्चंस, बिकॉज इंटीग्रेशन है हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट टू राइट, इसके आगे नोट में लिखो एक पॉइंट, इफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज लेस देन r1, if distance from the center is less than r1 or more than r2, if distance from the center is less than r1 or more than r2, then electric field intensity is 0. Then electric field intensity is 0. It implies that electric field exists. It implies electric field exists only between electric field exists only between the two concentric spheres, and energy is stored only between the two capacitor plates. अब कैपेसिटेंस में जो प्लेट एरिया होता है ए, ये तो सिंपल था, हमने दोनों प्लेट्स का एरिया सेम लिया था। अगर दोनों प्लेट्स का एरिया डिफरेंट हो फिर दो तरह के कैपेसिटर होते हैं, एक को हम बोलते हैं कांस्टेंट कैपेसिटेंस। कांस्टेंट कैपेसिटेंस का जो सिंबल होता है वो सिंपल ऐसे होता है कि दो पैरेलल प्लेट्स बना देते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर हो तो भी ऐसे ही बनाएंगे, बट अगर कैपेसिटेंस वेरिएबल हो तो इसके ऊपर एरो डाल देते हैं। दिस सिग्निफाइज इट्स अ वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर बनाना अगर पैरेलल प्लेट के साथ है तो इट्स वेरी सिंपल। जैसे मैं ऐसे मान लूं कि ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, कि दो अलग अलग प्लेट्स हैं, दो अलग अलग प्लेट्स और कैपेसिटेंस बनाना है। तो अगर मैं इस ऊपर वाली नीचे वाली प्लेट को फिक्स कर दूं, ऊपर वाली प्लेट को घुमाना शुरू कर दूं, तो ओवरलैपिंग एरिया देखना होता है, मतलब कॉमन एरिया। अगर मैं इसको घुमा के ऐसे बाहर लेके आ रहा हूं तो एरिया बढ़ रहे हैं कम हो रहा है, ओवरलैपिंग एरिया कम हाँ, हो हो जाएगा। तो इसकी कैपेसिटेंस कम होती जाएगी, और इसको वापस लेके आओगे तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। ये सिस्टम इस तरह के यूज होते हैं, जैसे आपके पास आजकल तो वो डिजिटल वाले काम ज्यादा आ गए हैं, बट अगर आपने पुराना रेडियो सेट देखा है कभी जिसमें नॉब लगी होती थी चैनल चेंज करने के लिए, फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए, देखा है कभी? यस सर। तो उसमें इसी तरह से कैपेसिटर प्लेट्स होती थी। कैसे? जैसे मान लो दो प्लेट्स हैं, तो जब आप नॉब को घुमाते थे ये वाली प्लेट ऐसे बाहर को आना शुरू हो जाती थी। तो अगर ये बाहर को आ रही है तो ए की वैल्यू कम हो रही है और कैपेसिटेंस कम हो रही है। इसका जो फॉर्मूला होता है ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी का, आपने ये टर्म्स अभी नहीं पढ़ी, एल इंडक्टर है, सी कैपेसिटेंस है। तो बेसिकली जब आप नॉब को टर्न करते हो आप सी को बदल रहे होते हो। सो सी को बदलने से फ्रीक्वेंसी बदल रही होती है। तो आपको रेडियो पे गाना कब सुनता है? रेडियो अगर आप जैसे से मान लो आपने चैनल लगाना है, तो आपको जो चैनल है वो फ्रीक्वेंसी बताता है कि उन्होंने कहा रेडियो मिर्ची 98.3 मेगाहर्ट्ज। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? जिस पे वो ट्रांसमिट कर रहे हैं।
जिस फ्रीक्वेंसी पे वो ट्रांसमिट कर रहे हैं वो आपको बता दी। आप अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी को भी सेम करोगे, बिकॉज जब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएंगी तो रेजोनेंस हो जाएगी। Yes. रेजोनेंस यही पढ़ा था ना कि दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, अगर दो फ्रीक्वेंसी सेम हो तो रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस होगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो आपको क्लियर साउंड सुनेगी। तो आप बेसिकली, उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड रखी हुई है, आप अपने रेडियो सेट्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे होते हो। जब आप नॉब को घुमाते हो या बटन प्रेस करके डिजिटली चेंज कर रहे हो तो आप बेसिकली कैपेसिटेंस बदलते हो। तो जब आप कैपेसिटेंस बदलते जाओगे, एक स्टेज आएगी जब आपके रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, तो तब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और आपको साउंड सुनेगी। सो दैट इज द प्लेस जैसे कैपेसिटेंस को यूज करते हैं। बट जब भी डायग्राम में उन्होंने ऐसे एरो डाल दिया, इट सिग्निफाइज दैट इट्स अ वेरिएबल कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस बदल सकती है, ये कांस्टेंट कैपेसिटेंस नहीं है। पर अगर नहीं, और कई बार कैपेसिटेंस को जरूरी नहीं है ऐसे दो पैरेलल से शो किया हो, कुछ बुक्स ये टर्मिनोलॉजी भी यूज करती है, दिस इज आल्सो कैपेसिटर, कि एक स्ट्रेट लाइन एक कर्व बना दी, सो देयर इज आल्सो अ कांस्टेंट कैपेसिटर। सो इसके आगे पहले तो एक होमवर्क में क्वेश्चन लिखो, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ concentric spheres of radius r1 and r2. Find the capacitance of concentric spheres of radius r1 and r2. If outer sphere is given charge q and inner sphere is earthed. If outer sphere is given charge q and inner sphere is earthed. Outer sphere is given charge q and inner sphere is earthed. So इसको करके देखना है कि इसमें कैपेसिटेंस क्या आएगी, कि अगर हमने आउटर को अर्थ कर दिया और इनर की कैपेसिटेंस बतानी है, सो सिस्टम की कैपेसिटेंस बतानी है। Next, right. In the figure shown, the capacitors have plate area A. In the figure shown, capacitors have plate area A. Bracket में लिखो is equal to L into B, length into breadth. Capacitors have plate area A. Bracket में लिख लो is equal to L into B. And separation D. Now, if a slab of mass M is displaced slightly, slab of mass M is displaced slightly, find the time period of oscillation of the slab. Find the time period of oscillation of slab. Is the motion simple harmonic? Is the motion simple harmonic? ठीक है, आपको ऐसे डायग्राम दिया एक,
आपको ये सिस्टम दिया है, दो कैपेसिटर्स हैं, इनकी लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, एरिया L इंटू B है। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जो आधी एक कैपेसिटर में पड़ी है, आधी दूसरे कैपेसिटर में। मैंने इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया बाय डिस्टेंस x। तो हमने बताना है अगर ये ऑसिलेट करेगी तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा और वो SHM होगा या नहीं होगा। मैंने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को थोड़ा सा उधर पुश किया और छोड़ दिया, तो विल इट ऑसिलेट, और अगर करेगी तो टाइम पीरियड क्या होगा और ये SHM होगा या नहीं होगा। कैसे करें? कैसे कर सकते हैं इसको? कुछ आइडिया? कंसेप्ट लिखो। if we displace the dielectric slab through small distance x, its potential energy changes. The potential energy of system changes. The potential energy of system changes. And the restoring force which can act. And the restoring force which can act. And the restoring force which can act tries to bring the slab back to the original position. और फोर एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा? क्यू स्क्वायर बाय 2c या हाफ सी वी स्क्वायर? सर हाफ CV स्क्वायर। बिकॉज v कांस्टेंट है, बैटरीज लगी हुई हैं। thus f is equal to minus du by dx and a is equal to f by m. तो इसके आगे आप करके देखना, यू कैन लीव, ज्यादा जगह नहीं लगेगी, आप भी ग्राफ में कर देना, अदरवाइज इट विल टेक अराउंड 3/4 पेज, तो 3/4 पेज छोड़ के आगे लिख लो, बिकॉज अगर आपसे नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। 3/4 पेज छोड़ लो इसके लिए आगे। नेक्स्ट टू राइट। अच्छा, एक हम इसमें नॉर्मल बैटरी से चार्ज करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, कैपेसिटर्स ब्लॉक डीसी, डीसी किसको बोलते हैं? डायरेक्ट AC and DC. Direct डायरेक्ट करंट। Capacitors block DC. Why capacitors block DC?
Direct current cannot pass through capacitor. मैं किसी सर्किट में बैटरी लगा देता हूँ, डीसी बैटरी, और उसमें कैपेसिटर भी है। मतलब जैसे मैं आपको एक मान लो डायग्राम दूं कि मेरे पास ऐसे सर्किट है एक, ये एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ ही है, इट्स नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएमएफ ही। तो ईएमएफ क्या होता है? EMF is a difference in potential between two terminals of a cell in open circuit. मतलब जैसे आप मार्केट से लेके आते हो सेल, तो उसके ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, दैट इज EMF। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का डिफरेंस इन पोटेंशियल जब इसमें से करंट नहीं फ्लो करी तब, बिकॉज करंट फ्लो करेगी तो डिफरेंट होगा। तो इसकी EMF ही है। इधर एक कैपेसिटर लगा, अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछता इसमें करंट कितनी है, तो करंट इन कैपेसिटर इज दिस सर्किट इज 0, कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा करंट को। बट अगर ऐसे दे दिया डायग्राम मैंने, और मैं आपसे पूछूं करंट कितनी फ्लो करेगी, तो कैपेसिटर्स ब्लॉक डीसी, मतलब यहां से तो करंट जा नहीं सकती। तो इस ब्रांच का सर्किट में कोई रोल नहीं है अभी। इसको अगर मैं निकाल दूं तो बाकी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? अगर ये ब्रांच निकल जाए, इसमें से तो करंट फ्लो नहीं करनी, तो इसका कोई काम नहीं है। तो बाकी ब्रांच कौन सी बची? R1 plus R2। ये डायग्राम बचा आपके पास सिर्फ। ओम्स लॉ के हिसाब से करंट कितनी फ्लो करेगी? V by R plus R2। V by बी R कहां से आ गया? E by R होगी। E by R ये वह प्लस R2। मैं आपसे पूछूं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा कैपेसिटर के क्रॉस? कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? करंट तो फ्लो करनी थी। अच्छा पहले इसका रीजन बता सकते हो, एसी फ्लो करती है और डीसी नहीं करती? सर ये पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में फर्क क्या है, समझ नहीं आ रहा। पोटेंशियल डिफरेंस होती है डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, और ईएमएफ होती है सेल की डिफरेंस इन पोटेंशियल अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब जब ऐसे ही पड़ा है सेल, करंट फ्लो करेगी तो डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज सेल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। तो सर का फॉर्मूला में कौन सी यूज करते हैं हम, ओम्स लॉ वाले? ईएमएफ। ओके सर। आपको वो 10th में नहीं कराते, बट वो ईएमएफ पुट करनी होती है। ये जो मैंने मार्क किया, ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जनरली R1। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये कैपेसिटर है तो इसमें से डीसी क्यों नहीं फ्लो कर सकती? और एसी फ्लो कर सकती है? फिजिक्स की बुक पढ़नी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इस पे ना एक व्हाट्सएप पे जोक भी चलता है, और वो एक मेरे स्टूडेंट ने एक्चुअल में आंसर में वही लिख दिया था जो व्हाट्सएप से पढ़ा होगा कहीं पे। उसने कहा डीसी बिकॉज डायरेक्ट जाती है तो ये प्लेट इसको रोक लेती है, एसी बिकॉज ऐसे जाती है तो वो निकल जाती है। पर ये गलत है ना। एक्चुअल में क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच में क्या था? वैक्यूम। एयर, डाइलेक्ट्रिक, मेटल नहीं रखा था हमने, कंडक्टर नहीं रखा था। इट कैन बी एयर, इट कैन बी डाइलेक्ट्रिक, एनीथिंग, इंसुलेटर। तो अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में इंसुलेटर है तो इंसुलेटर में से थोड़ी करंट पास कर सकती है, ऐसे थोड़ी जा सकती है इंसुलेटर में से पास करके। एसी के पास होने का रीजन डिफरेंट है, दैट्स अ टोटली इंडक्शन कंसेप्ट। बिकॉज एसी में होता है कि चार्ज जो प्लेट्स पे वेरिएबल है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ा बेसिक पढ़ा था, क्या होता है
फेरेडेज एक्सपेरिमेंट यस क्या पढ़ा था? सर, जब एक फील्ड में दूसरी फील्ड आती है तो वो फोर्स लगाती है। फेरेडे ने बेसिकली कहा था कि अगर ये मेरे पास एक कॉइल है, मैं इसके पास मैग्नेट लेके आता हूं तो इसमें करंट फ्लो करेगी कॉइल में से. दैट वाज इंडक्शन. उसका बेसिक लॉजिक ये था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? Number of electric field lines passing through a given area. Magnetic flux is number of magnetic lines of force passing through a given area. मान लो मेरे पास एक कॉइल है और ये एक मैग्नेट है. मैं अगर मैग्नेट को पास लेके आऊंगा तो इसमें से जो फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो बढ़ेंगी या कम होंगी? सर बढ़ जाएंगी। बढ़ जाएंगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं. तो इसको पास लेके आओगे तो इसमें से जो फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो बढ़ जाएंगी. दूर लेके जाऊंगा तो कम हो जाएंगी, और रोक दूंगा तो मैग्नेट को कांस्टेंट हो जाएंगी। कांस्टेंट हो जाएंगे. मैं मैग्नेट को स्टेशनरी रखूं, कॉइल को मूव करूं तो भी यही होगा. यस सर। यस सर। मैग्नेट स्टेशनरी है, कॉइल पास आएगी तो कॉइल में से फ्लक्स बढ़ेगा, कॉइल दूर जाएगी तो फ्लक्स कम होगा. तो फेरेडे ने कंक्लूड किया कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है उसके कारण इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी जिसके कारण करंट फ्लो करेगी. दैट वाज फेरेडेज कंसेप्ट कि मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरी करने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. ये जो कंसेप्ट है कि एसी कैसे पास की, एसी पास की बिकॉज एसी में चार्ज ऑन द प्लेट्स वेरिएबल है, कांस्टेंट करंट नहीं है. चार्ज ऑन द प्लेट्स अगर वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स कांस्टेंट होगा या वेरिएबल? वेरिएबल। तो फ्लक्स थ्रू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? वेरिएबल। तो जैसे फेरेडे ने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. मैक्सवेल ने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसके कारण करंट फ्लो करेगी. उसको उसने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट. सो दैट इज अ टोटली डिफरेंट कंसेप्ट, बट डीसी ब्लॉक होता है. इस चैप्टर के कभी भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे कि करंट बताओ कितनी है, तो इस ब्रांच को निकाल देंगे. इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर के अक्रॉस. कैपेसिटर में से चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, पर इसकी प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा. अच्छा यार, ये बताओ, करंट आपको पता चल गई आई, ये मैंने निकाल ली. इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा R2 के क्रॉस? IR2 मतलब कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस? किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया? से मान लो ये दो पॉइंट्स हैं AB के क्रॉस. ये सबको समझ में आ रहा है मैंने कैसे लिखा? ये क्लियर है सबको? यस. अच्छा, ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और वी भी मैंने निकाल लिया. इस पॉइंट के इस पॉइंट की पोटेंशियल सेम होगी या डिफरेंट? सेम. इन दोनों पॉइंट्स की सेम, इन दोनों पॉइंट्स की भी सेम. यस. इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0. ये VA, ये VB, ये मान लेते हैं VC. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं VA माइनस VB, दिस इज VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB. लिख सकता हूं क्या नहीं लिख सकता? यस ये कितना है?
ये टर्म इधर करंट फ्लो नहीं कर रही, तो VC माइनस VB कितना होगा? रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं कर रही, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0 0 VC माइनस VB 0 होगा। तो ये अगर 0 हो गई टर्म, तो VA माइनस VB और VA माइनस VC इक्वल होंगे, मतलब कैपेसिटर के क्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो R2 के क्रॉस है। कैपेसिटर और R2 के क्रॉस सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस होना है ना। यस तो करंट फ्लो करना नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज कैपेसिटर के लिए ओम्स लॉ नहीं था कि करंट फ्लो नहीं कर रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो। वो तो रेजिस्टर के लॉ है कि V इज इक्वल टू IR। समझ में आए कुछ कुछ क्या किया? सर डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट का मतलब नहीं समझ आ रहा, मतलब होता क्या डायरेक्ट है? करंट होती है, डायरेक्ट करंट होती है जो तीन करंट बेसिकली हम लेते हैं। एक होती है स्टेडी। स्टेडी करंट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट। ठीक, इसको यस मैं ग्राफिकली अगर प्लॉट करूं तो स्टेडी करंट इज लाइक दिस। इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट डीसी, कि करंट टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही। AC कैन बी नंबर ऑफ टाइप्स। ये भी AC है, ये भी AC है, ये भी AC है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल रहे हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड बदले डायरेक्शन ना बदले तो दिस इज वेरिएबल डीसी। डायरेक्शन नहीं बदल रही है तो करंट हमेशा पॉजिटिव है, पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। तो ये स्टेडी स्टेट डीसी, ये वेरिएबल डीसी, ये सारी एसी। घर में कौन सी एसी आती है आपके इन तीनों में से? गवर्नमेंट सप्लाई, सर फर्स्ट वाली साइन वेव एसी। और आपके घर में जो इन्वर्टर लगा उसकी आउटपुट कौन सी है? जनरेटर की बात नहीं कर रहा, जनरेटर साइन वेव एसी देता है। इन्वर्टर्स, मतलब आपके घर में दो तरह के इन्वर्टर हो सकते हैं अगर आपको पता है तो। यहाँ तो साइन वेव इन्वर्टर होगा या नॉन साइन वेव इन्वर्टर होगा। साइन वेव इन्वर्टर होगा तो ये आउटपुट होगी, नॉन साइन वेव होगा तो ये वाली होगी, ट्रिप्सॉइडल। किसको पता है घर में कौन सा इन्वर्टर लगा है, साइन वेव या नॉन साइन वेव? मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ जज करने का। आपके घर में जब पावर फेलियर होता है, स्विच होता है पावर सप्लाई से इन्वर्टर पे, फैन की जो साउंड है वो चेंज होती है या नहीं होती है? यस सर हो जाती। अगर उसकी आवाज चेंज होती है तो ट्रेप्सॉइडल है, अगर नहीं होती तो साइन वेव है। बिकॉज फिजिक्स पढ़ते हो तो यू शुड नो वन थिंग कि अगर आपके घर में ट्रेप्सॉइडल इन्वर्टर है, फैन की आवाज बदलती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, दे वर्क इक्वली गुड दोनों वे। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस मतलब जिसमें डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स नहीं लगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस शुड नॉट बी ऑपरेटेड ऑन ट्रेप्सॉइडल एसीज। मतलब आपके घर में अगर एक से नॉन साइन वेव इन्वर्टर है और एक प्लग पॉइंट है जहां पे उसकी आउटपुट आती है, तो आप मोबाइल को उस पर चार्ज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट कैन बी डैमेज एनी टाइम। मोबाइल के जो चार्जर्स हैं, मोबाइल है, टीवी है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, दे आर नॉट मेड टू ऑपरेट ऑन अ नॉन साइन वेव एसी। और वो सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं, खराब हो जाती हैं। पंखा, ट्यूबलाइट, ऐसी चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप साइन वेव दो नॉन साइन वेव दो, दे ऑपरेट इक्वली गुड। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को फर्क पड़ता है, दे आर वेरी सेंसिटिव टू वोल्टेज फ्लक्चुएशंस एंड द टाइप ऑफ इनपुट यू आर गिविंग टू देम। इतना समझ आया कुछ?
तो नेक्स्ट टाइम इसके आगे चलें। फिर आज वाला समझ में आया? हमने पहले एनर्जी डेंसिटी निकाली, आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटेंस निकाली, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स की कैपेसिटेंस निकाली और एनर्जी के थोड़े से कंसेप्ट डिस्कस किए। इसमें देख लेना कुछ पूछने वाला हो तो। कल मैं थ्योरी नहीं कराऊंगा, सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इस पार्ट के। वी विल स्टार्ट विद द बेसिक, फिर धीरे धीरे स्टेप अप करते जाएंगे। और फिर कल का दिन न्यूमेरिकल करके परसों करेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, जैसे आप रेजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल करते थे। सो विल डू कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया दे दो, बिकॉज कुछ लोगों का भी टेस्ट रहता है देने वाला। सर मेरे को रिसीव नहीं हुआ। आपने मांगा नहीं होगा, जिसका मेरे को मैसेज आया सबको सेंड कर दिया मैंने। ओके सर। मैंने कहा था ना जब प्रिपेयर हो जाए तो मैसेज कर देना। तो जिसका प्रिपेयर्ड है मेरे को मैसेज कर दो। जिस टाइम रात तक अभी मैं जाग रहा हूँ 11 बजे तक, तो 11 बजे तक भी सेंड कर दूंगा मैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर C = Q/P में जो Q था कि जैसे